ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ PS PCL ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ PS ਟੈਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ PS ਟੈਟ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ PS ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਗੋਲ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫੀ। ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਕ ਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਰਥ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਭੂ ਭਾਗ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ। ਗੋਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀਆ, ਸੂਰਜ ਆ, ਤਾਰੇ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਭੂਗੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਸਕੋਲਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਐਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਭੂਗੋਲ ਦੀ, ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਭੂਗੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਆਫ
मॉडर्न जोग्राफी काउंट करते हैं। नॉर्मली देखो दो पक्ष तो क्वेश्चन आउणगे। फादर ऑफ जोग्राफी की हो गया साडा इरेटोस्थनीज हो गया, और जिहड़ा साडा फादर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी है वो दो परसनस ने, नाल दी नाल नोट करते जाओ किहड़े वो दो परसनस ने। एक हैगा जी तुहाडा अलैगजेंडर हम्बोल्ट, तुसी सिर्फ पिछे वाला नाम देख लो हम्बोल्ट, पंजाबी दे विच हम्बोल्ट। ते दूसरा बंदा जिहड़ा हैगा वो हैगा कॉरल रिटर, तो इहदा भी पिछला नाम देख लो तुसी रिटर, कॉरल रिटर। ये दोने बंदियां नूं असीं की बोलदे हां, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। ਜਾਂ फिर आपां की कहांगे कि आधुनिक भूगोल दे पितामह, आधुनिक भूगोल दे पितामह। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े पेपर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहंदे ने। हुण जे असीं भूगोल की गल करिए तो सब तो पहलां असीं भूगोल नूं शुरू करदे हां ब्रह्मंड दे नाल, यूनीवर्स दे नाल। बेशक असीं भूगोल विषय दे विच, भूगोल सबजैक्ट दे विच धरती बारे पढ़ांगे, पर धरती का लिंक है जिहड़ा ब्रह्मंड दे नाल हैगा, क्योंकि धरती एक प्लैनेट ही है और इहदा बाकी प्लैनेट नाल भी कुछ ना कुछ रिलेशन रहिंदा है। प्लस साडे जिहड़ा धरती ग्रह है इहदा सूरज दे नाल रिलेशन रहिंदा है, चंद्रमा दे नाल रिलेशन रहिंदा है। सो जिहड़ियां भी चीज़ां दे नाल साडा रिलेशन रहूगा वो सारियां असीं अपने सबजैक्ट दे विच कवर करके चलांगे। जे असीं भूगोल नूं जां जोग्राफी नूं शुरू करिए तो असीं शुरू करांगे यूनीवर्स तो, जिहड़ा कि सानू असीं पंजाबी च जिहनूं बोल दिंदे आ ब्रह्मंड तो। ठीक है, सो अगला जिहड़ा साडा टॉपिक होऊगा वो होऊगा जी ब्रह्मंड यूनीवर्स। ब्रह्मंड यूनीवर्स देखो जी, ब्रह्मंड है जिहड़ा यूनीवर्स है उहदे विच वो सारियां चीज़ां ने जिन्हां नूं असीं डिफाइन कर रखिआ। वो किहड़ियां सारियां चीज़ां ने साडे ब्रह्मंड दे विच की ने, साडियां गलैक्सियां भी ने, तारे भी ने जी, साडे सूरज भी है, साडा चंद्रमा भी है, साडा ग्रह भी ने, साडे उपग्रह भी ने, साडे ये सारियां बॉडीज़ ने जिहड़ियां ये मिल के किहनूं बनाउंदियां ने, ब्रह्मंड नूं बनाउंदियां ने। और ब्रह्मंड वो चीज़ है जिन्नियां साडियां चीज़ां फिजिकली एग्जिस्ट करदियां ने ਉਹਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं, ब्रह्मंड बोलते हैं। नाल दी नाल अपनी कॉपी ते ना नोट्स बनाते जाओ, ये चीज़ां तुहाडे लई बहुत ज़रूरी ने। ब्रह्मंड किहदा सुमेल है, गलैक्सियां, तारे, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, जिन्हें भी तुसीं नाम सुने ने, उल्का, उल्का पिंड, पूछल, तारे, सब कुछ किहदा हिस्सा है, ब्रह्मंड का हिस्सा हैगा। साडी धरती किहदा हिस्सा, ब्रह्मंड का हिस्सा हैगी। होर जिहड़े बाकी ग्रह ने वो किहदा हिस्सा ने, ब्रह्मंड का ही हिस्सा ने, यूनीवर्स का ही हिस्सा ने। जे हुण असीं देखीए कई बारी साडे दिमाग दे विच क्वेश्चन भी आउंदा हुंदा कि किते ना किते असीं किवें बणे आ, ब्रह्मंड की उत्पत्ति हुई, देखो यूनीवर्स बणिया, फिर जीव जंतु बने, पेड़ पौधे बने, पानी बनिया, रिसोर्सिस बने, है ना, इहो जिहियां चीज़ां बणियां। जे आपां देखीए ब्रह्मंड का बनना जां सूरज, तारे, गलैक्सियां, ग्रहां का बनना, उहदे पिछे एक थ्योरी दित्ती जाती है, जां ब्रह्मंड की उत्पत्ति की एक थ्योरी दित्ती जाती है। वो की थ्योरी आ जिहड़ी कि साडे देश जिहड़ी कि साडे ब्रह्मंड की उत्पत्ति पिछे हैगी है, वो थ्योरी है राजे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है जी, जे थोनू पेपर दे विच सीधे तौर ते क्वेश्चन पूछ लैण कि ब्रह्मंड के ओरिजिन दे विच आउण दे लई किहड़ी थ्योरी आ, तां बिग बैंग थ्योरी आ। उहदे नाल होया कि असल दे विच जिहड़ा ब्रह्मंड है इहदे ओरिजिन दे लई ये चीज़ मन्नी जांदी आ कि पहला एक बहुत वड्डा गोला हुंदा सी, वो गोला सीगा जिहड़ा फटन करके वख-वख हिस्से बन गए, सूरज बन गया, चंद्रमा बन गया, ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए। सो इहदे नाल ही जिहड़ा साडा यूनीवर्स है वो ओरिजिन दे विच आया है। और इस थ्योरी नूं असीं नाम की दित्ता है, बिग बैंग थ्योरी दित्ता है। और होर थोड़ा जिहा जे मैं एनालाइज करावां, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ब्रह्मंड की उत्पत्ति एक बहुत ही छोटे जे बिंदु तो शुरू हुई है जो लगातार की करता जा रहा है,
फैलता ही जा रहा है। जिहड़ा यह ब्रह्मंड है ये लगातार की हुंदा जा रहा है, स्प्रैड हुंदा जा रहा है। और जिहड़े साडे ब्रह्मंड की खोज है उहदे च असीं सारियां चीज़ां नहीं लंभियां, बहुत ही गलैक्सियां ने, बहुत ही धरतियां ने, बहुत ही आकाश ने। जिन्ना कुछ असीं लभ लिया उन्ना क असीं नाल दी नाल एनालाइज करते जा रहे हैं। आखिर ते जदों ब्रह्मंड है जिहड़ा वो की हो जूगा, जो साडे खात्मा होगा, सारिया चीज़ां खत्म होणगियां, तो ये चीज़ कही जाती है कि दोबारा तो सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां सुंगड़ना शुरू कर देणगियां और सारिया चीज़ां एक पॉइंट ते इकट्ठियां हो जाणगियां और पहलां दे तरीके नाल पूरी चीज़ है जिहड़ी वो की हो जूगी, इक्को जी हो जूगी, कोई पानी वगैरह हो जूगा सारे किते। ये चीज़ ब्रह्मंड की थ्योरी है जिहड़ी दित्ती जाती है ना। हजे वैसे सुंगड़न वाली गल नहीं, हजे तो ब्रह्मंड पूरी तरीके नाल स्प्रैड ही नहीं होया, हजे तो ब्रह्मंड है जिहड़ा कॉन्टीन्यूसली की हो रहा है, फैल रहा है। होर गलैक्सियां बननगियां, होर तारे बननगे, होर धरतियां चंद्रमे बननगे। सो ये थ्योरी किहड़ी है जी, साडी बिग बैंग थ्योरी आ। और ये थ्योरी दित्ती किहने आ? एक बेल्जियम के विग्यानी जिन्हें कि 15 बिलियन साल पहला, ये जरूर लिख लो, टैट वाले बच्चे तो बिल्कुल स्पैशली ध्यान दे नाल पेपर खोल के देखो, पिछे तुहानूं क्वेश्चनस मिलणगे। 15 बिलियन ईयर्स पहला, 15 बिलियन साल पहला एक बेल्जियम के विग्यानी, नाम की सी उन्हां दा? जॉर्ज लेमैत्रे। मैं कोशिश करूँगी कि पंजाबी दे विच ही नाम लिखां ताकि तुहानूं पढ़न दे विच डिफिकल्टी ना आवे, पर थोड़े जे नाम ने जिहड़े थोड़े गिणे सुने नहीं होने, क्योंकि बेल्जियम दा कोई ग्रीक दा तो उन्हां दे नाम उन्हां वर्गे होणगे। सो जॉर्ज लेमैत्रे नां दे बेल्जियम विग्यानी ने 15 साल पहला एक थ्योरी दित्ती जिन्हों कि असी ब्रह्मंड के ओरिजिन की उत्पत्ति की थ्योरी मानते हैं, जिहदा नाम की है रजे? बिग बैंग थ्योरी आ। ठीक है, सो ये नाल साडा ब्रह्मंड बन गया, गलैक्सियां बन गईयां, ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, वो सारा कुछ बन गया। हुण जिहड़ा साडा ब्रह्मंड है उहदे बारे असी स्टडी कर रहे हैं, है ना, स्टडी करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, असी भूगोल सबजैक्ट है जिहड़ा थोड़ा मोटा उहदे नाल कोरिलेट करके पढ़ते हैं। जे आपां गल करिए जिहड़ा साडा ब्रह्मंड है उहदी स्टडी नूं कहंदे की ने? नॉर्मली ना थोड़े पेपर दे विच ये चीज़ां बहुत बारी पूछियां जांदियां ने। स्टडी ऑफ यूनीवर्स, ब्रह्मंड दे अध्ययन नूं की कहंदे ने? स्टडी ऑफ मून नूं की कहंदे ने? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक नूं की कहंदे ने? ये सारे पॉइंट असीं टॉपिक वाइज करते जावांगे। जे असीं गल करिए ब्रह्मंड दे अध्ययन नूं की कहंदे ने? ब्रह्मंड दे अध्ययन नूं, जां फिर इंग्लिश दे विच तुसीं लिख लो स्टडी ऑफ यूनीवर्स नूं की कहंदे ने? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। देखो अगेन हुण एक चीज़ तुसीं जरूर फर्क च रखोगे, जिहड़ियां स्टडीज़ होणगियां ना वो भी ग्रीक भाषा दे विच होणगियां, क्योंकि लभ्या किने इन्हां नूं? ग्रीक्स ने लभ्या। रैटोस्थनीज ने एज अ सबजैक्ट सानूं बना के दिता, सो शब्द थोड़े जिहे उन्हां दे होणगे। जिहड़ा कॉस्मो शब्द है इहदा इंग्लिश दे विच मतलब की हुंदा है? यूनीवर्स। ते जिहड़ा लॉजी शब्द है इहदा मतलब की हुंदा है? स्टडी जां आपां अध्ययन करना। सो यूनीवर्स दे अध्ययन करन नूं असीं की बोल दिंदे आ? कॉस्मोलॉजी बोल दिंदे आ। जे आपां पंजाबी च लिखीए तां कोई पंजाबी मीनिंग नहीं, सानूं सेम ही लिखना पऊगा, कॉस्मोलॉजी। इस तुहाडे लई क्वेश्चन जरूरी है, नोट करते जाओ नाल दी नाल। हुण जे आपां गल करिए अगले कॉन्सैप्ट दी, मैं तुहानूं कहा कि जिहड़ा साडा ब्रह्मंड है ये किहदी कलैक्शन है? आपां कुछ नाम लिखे सी ना कि गलैक्सी है जी, तारे है जी, ग्रह है जी, उपग्रह है जी, ये सारियां चीज़ां असीं डिफाइन करते चलांगे जिहड़ियां भी सानूं ब्रह्मंड दे विच मिलदियां ने। सब तो वड्डी चीज़, सब तो पहली चीज़ जिहदे बारे असीं अज गल करांगे वो हैगी है जी साडे गलैक्सी। ठीक है जी, गलैक्सी की हुंदी आ जां गलैक्सी किहो जी बॉडी आ? तारिਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, तारिਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ की कहा जाता है? गलैक्सी कहा जाता है। देखो हर एक प्लैनेट, हर एक ग्रह तो असी कुछ तारे देखते हाँ, उस ग्रह की स्पैशल की हुंदी है? गलैक्सी हुंदी है। जिवें तुसीं पढ़िया होना है कि जिहड़ी साडी धरती आ उहदी गलैक्सी किहड़ी आ? मिल्की वे आ। इहदा मतलब की आ कि धरती ते खड़ के जिन्ने भी तारे सानूं नंगी अख दे नाल दिखदे ने वो सारे किहड़ी गलैक्सी दे विच आउंदे ने? मिल्की वे दे विच आउंदे ने। एवें जिवें साडे पता नहीं किन्नियां क ब्रह्मंड दे विच गलैक्सियां ने और किड्डा क साडा ब्रह्मंड है। जे आपां गलैक्सी दी डेफिनेशन देखीए तां की बनूगी जी? तारिਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਲੈਕਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ मैं कह रही हाँ कि श्योर नहीं हैगा कुछ भी, क्योंकि ब्रह्मंड लगातार की हो रहा हैगा जी, एक्सपैंड हो रहा हैगा, पसार हो रहा ब्रह्मंड का लगातार। सानू जो चीज़ां लभी जांदियां ने वो असीं करी जांदे आ। जे आपां अज तक दीयां गलैक्सियां दी गल करिए तां टोटल असीं किन्नियां गलैक्सियां लभीआं ने, 10⁻11 गलैक्सियां लभीआं ने, जिन्हां नूं आपां नॉर्मल भाषा दे विच किन्नियां बोल दिंदे आ, 100 बिलियन गलैक्सीज बोल दिंदे आ। 10 दी पावर 11 गलैक्सियां लभीआं ने, ठीक है जी। हुण दूसरा शब्द है आपां यूज़ कीता है कि गलैक्सी किहदा समूह हुंदा है, तारिਆਂ ਦਾ समूह हुंदा है। अप्रॉक्सीमेट एक गलैक्सी दे विच किन्ने तारे हुंदे ने, 10 ਦੀ पावर 11 ही तारे हुंदे ने, ये भी याद रखना है। टोटल गलैक्सियां किन्नियां ने साडियां, 10 ਦੀ पावर 11। एक गलैक्सी दे विच किन्ने तारे ने, 10 ਦੀ पावर 11। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੁੱਲ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 22। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਐਸ ਸਟੈਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 22 ਤਾਰੇ ਨੇ। एक गलैक्सी च किन्ने तारे ने, 10 ਦੀ पावर 11 तारे ने। और कुल किन्नियां गलैक्सियां ने, 10 ਦੀ पावर 11 गलैक्सियां ने। चलो जी इत्थों तक हो गया, गलैक्सियां का काम निबड़िया। अगे असीं अगला कॉन्सैप्ट करते हैं। जे आपां गलैक्सियां तो बाद देखिए, साडे कोले 10 ਦੀ पावर 11 गलैक्सियां बारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सानू सिर्फ 3 गलैक्सियां दे नाल संबंधित क्वेश्चन आउंदे ने। किहड़े-किहड़े? पहला तो सानू क्वेश्चन आउंदा है कि धरती की गलैक्सी किहड़ी है। देखो राजे सानू अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आऊगा, क्योंकि असीं किहदे उपर रह रहे हैं, धरती के उपर रह रहे हैं। जिहड़ी साडी धरती की गलैक्सी है उहदा नाम है जी मिल्की वे। तुसीं सारिआं ने सुणिया होना हैगा आकाश गंगा, गलैक्सी आकाश गंगा मिल्की वे, ये बारे सब ने सुनिया गा। मिल्की वे है जिहड़ी साडी धरती की गलैक्सी है, और धरती की गलैक्सी जो कि मिल्की वे है, इहदी शेप, इहदा जिहड़ा आकार है वो किस तरीके दा है जी, कुंडलदार है। ये थोड़े पेपर च क्वेश्चन इहो जिहे पूछे जाते हैं, इन्हां नूं इग्नोर नहीं करना, इहो जिहे क्वेश्चनस नूं बाकायदा पढ़ के चलना आ कि जिहड़ी साडी धरती की गलैक्सी आ वो किहड़ी आ, मिल्की वे आ। और जिहड़ी मिल्की वे आ उहदी शेप आकार किहो जिहा, कुंडलदार है, जिन्हों तुसीं बोलदे हो स्पायरल। ठीक है, आपां स्पायरल बाइंडिंग नहीं कराउंदे एवें करके, एवें करके स्पायरल बाइंडिंग करवाने हैं ना आपां, तां इस तरीके का आकार है जिहड़ी साडी गलैक्सी है। ठीक है, ये होगी साडी धरती की गलैक्सी। हुण 2 गलैक्सियां दे क्वेश्चन होर पूछे जाते हैं सानू, किहड़ी-किहड़ी? अगली गलैक्सी पूछणगे सानू कि धरती दे सब तो नेड़े दी गलैक्सी जां धरती दी नेबर गलैक्सी किहड़ी है। धरती दी सब तो नेड़े दी गलैक्सी, ठीक है, जां जिन्हों असीं इंग्लिश पढ़ांगे नीयरेस्ट गलैक्सी ऑफ अर्थ जां नीयरेस्ट गलैक्सी टू अर्थ, ये हैगी है जी एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इनू इंग्लिश दे विच बोलदी आ एंड्रोमेडा। असल दे विच अंग्रेजी दे शब्द ने, पंजाबी च लिखण दी कोशिश कीती आ, हो सकदा पीएस टैट वाले तुहानूं इंग्लिश दे विच ही सेम वर्ड्स पए होण, सो इग्नोर ना करियो। एटलीस्ट तुहानूं स्पैलिंग नहीं पता तो होना चाहिए भी किहो जा। ठीक है, धरती दे सब तो नेड़े दी गलैक्सी किहड़ी होगी जी, साडी एंड्रोमेडा गलैक्सी होगी। एक क्वेश्चन होर पुछदे ने कि सब तो नवीं लभी हुई गलैक्सी किहड़ी आ। 3 क्वेश्चन कहा सी तुहानूं, धरती दी गलैक्सी किहड़ी आ, धरती दे नेड़े गलैक्सी किहड़ी है, और सब तो नवीं लभी गई गलैक्सी किहड़ी है। सब तो नवीं लभी हुई गलैक्सी जिहड़ी असीं लेटेस्ट फाइंड कीती आ, किहड़ी कीती है जी, डवार्फ गलैक्सी। इनू मैं इंग्लिश भी लिख दिंदी आ, दैट इज डवार्फ गलैक्सी।
ਲਓ ਜੀ, ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਆ। ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਆ? ਕੁੰਡਲਾਦਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਊਲੀ ਫਾਊਂਡਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਗਲੈਕਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਵਾਰਫ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲੈਕਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਐਂਡ ਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਗਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਚਮਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨਡ ਉਹ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਮੰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ।